اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 3-4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرا اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پر ایرانی کماندار شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا۔ شمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا، تیز چلو۔ خدام نے اپنی چال نہ بدلی۔ شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا۔ خدام اپنی ہی رفتار سے چلتا رہا۔ شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کونھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ میں کام کرنے والے مسلمان دم بخود دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی بستی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ شمر نے خدام سے حقارت آمیز لہجے میں کہا، دیکھ کمینے انسان، میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ خدام نے پوچھا، اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ شمر نے کہا، پھر میں تمہارے منہ پر 1-2 تھپڑ نہیں ماروں گا، تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ خدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے کسی نے بلایا اور کہا، خدام ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، آ جاؤ خدام آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اس سے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا، لیکن وہاں صورت مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چال چلن کا نوجوان نہیں۔ اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے۔ لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا۔ ایک نے کہا اسے ادھر لایا گیا تھا اور لانے والا ہم میں سے کوئی ایک ہی تھا۔ ایک بوڑھے نے کہا، معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے۔ یہاں سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے۔ یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے۔ وہ ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ابو نصر، تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ ابو نصر کے ہونٹ ہلے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اسی سے سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مخبر ہے۔ اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا۔ اس عورت نے کہا، میں تمہیں دیکھ رہی تھی، تم ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئے اور وہاں سے شمر نکلا۔ ایک بوڑھے نے کہا، دیکھو ابو نصر، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شمر کو یہ بھی جا کر بتا دو کہ ہم نے تمہیں مخبر اور غدار کہا۔ یہ سوچ لو کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام ہو اور اپنی قوم کے خلاف مخبری اور غداری تمہارا فرض ہے۔ ابو نصر نے سر جھکا لیا۔ اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ آخر ابو نصر نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا ہوا تھا اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ ندامت کے یہ آنسو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تمہیں آخر کتنا انعام ملتا ہوگا؟ ان میں سے ایک بزرگ نے پوچھا۔ ابو نصر نے سسکی لینے کے انداز میں کہا، کچھ بھی نہیں، میں نے یہ پہلی مخبری کی ہے۔ اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے۔ ایک نے کہا، ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ ابو نصر نے جواب دیا، میری مجبوری۔ پرسوں کی بات ہے، اس کماندار نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ میں زہرا کے گھر پر نظر رکھوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ نظر رکھوں کہ زہرا گھر سے بھاگ نہ جائے اور اسے کسی جوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا، لیکن میری 2 بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا؟ میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کماندار اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ شمر میری بات سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی شاہی فوجی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا پکا انتظام کرے گا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ بوڑھے نے کہا، خدا کی قسم، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ ایک اور بولا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو ابو نصر، تو جانتا ہے کہ ان آتش پرستوں کے وعدے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں تمہیں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی مسلمان سے وفا کرے۔ ایک اور نے کہا، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم خود
मौजूद हैं। तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां हैं। जहरा के बाप सऊद ने कहा, मैं इसे माफ करता हूँ। खुदाम बोला, और मैं भी इसे माफ करता हूँ। खुदा की कसम, मैं शिमर से इंतकाम लूंगा। बुजुर्ग अरब ने कहा, जोश में मत आ लड़के, कुछ करना है तो करके दिखा, और ये भी याद रख कि जोश में आके मत बोल, दिमाग को ठंडा करके सोच। दूसरी सुबह जब ये मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए गए तो उनमें खुदाम नहीं था। हर किसी ने खुदाम के बाप से पूछा कि वो कहाँ है। बाप परेशान था। उसे सुबह पता चला कि खुदाम गायब है। खुदाम के बाप ने रोते हुए कहा, जरदुश्त की ये पुजारी मेरे बेटे को खा गए हैं। उसे उन्होंने किसी तरह धोखे से बाहर बुलाया होगा और कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी होगी। सबका यही ख्याल था। सिर्फ जहरा थी जिसे उम्मीद थी कि खुदाम खुद कहीं चला गया होगा। उसने जहरा को बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाएगा। जहरा ने ये बात किसी को न बताई, बल्कि उसने भी यही कहा कि खुदाम को ईरानियों ने गायब कर दिया है। जहरा ने अपनी सहेलियों से कहा कि वो 2-3 रोज ही खुदाम का इंतजार करेगी। वो न आया तो दरिया में डूब मरेगी। 3-4 रोज के बाद रात को शिमर फौज की एक चौकी में बैठा 2 नौउम्र लड़कों का रक्स दिख रहा था। ईरान के शाही दरबारों में ऐसे लड़कों का रक्स मकबूल था जिनके जिस्म लड़कियों की तरह दिलकश, गुदास और लचकदार होते। उन्हें ऐसा लिबास पहनाया जाता जिसमें वो नीम ओरियां लगते। शिमर शाही खानदान का फर्द था। उस रात ये 2 लड़के उसने अपने सिपाहियों के लिए बुलाए थे। शराब का दौर चल रहा था। सिपाही चीख चीख कर दाद दे रहे थे। शराब में बदमस्त होकर 2-3 सिपाहियों ने भी लड़कों के साथ ही नाचना शुरू कर दिया। शिमर के हुक्म पर उन सिपाहियों को दूसरे सिपाही उठाकर चौकी से बाहर फेंका। ये चौकी छोटा सा एक कला था, लेकिन उसके दरवाजे रात को भी खुले रहते। ईरानियों को किसी दुश्मन के हमले का खतरा नहीं था। वो अपने आप को नाकाबिले तस्वीर समझते थे। रक्स जब अपने उरूज को पहुंचा और शराब का नशा शिमर और उसके सिपाहियों के दिमाग को माउफ करने लगा तो सनसनाता हुआ एक तीर आया जो शिमर की गर्दन में एक तरफ से लगा और उसकी नोक दूसरी तरफ से निकल गई। शिमर दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख कर उठा। सिपाहियों में हड़बौंग मच गई। वो सब शिमर के गिर्द इकट्ठे हो गए। 3-4 और तीर आए। 3-4 चीखें सुनाई दी। फिर उन ईरानियों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उन्हें संभलने का मौका ही न मिला और वो कटने लगे। उनमें से जो भागकर दरवाजों की तरफ गए वो दरवाजों में कट गए। चौकी वालों को कहीं से भी मदद न मिल सकती थी। किसी भी दरवाजे से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। उन्हें हथियार उठाने की तो मोहलत ही नहीं मिली थी। इस हमले में जो बच गए वो जमीन पर लेट गए। ये एक तूफान था या बगुला जो गैर मुतवक्के तौर पर आया और जब गुजर गया तो अपने साथ वो तमाम माल दौलत जो उस चौकी में था ले गया। पीछे लाशें रह गई या तड़पते हुए जख्मी या वो अच्छे भले ईरानी सिपाही जो जान बचाने के लिए लाशों और जख्मियों में लेट गए थे। सुबह हुई। मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए घरों से निकल रहे थे कि घुड़सवार ईरानी फौज ने उनकी बस्ती को घेरे में ले लिया। दूसरी चौकी को उस वक्त उस चौकी पर हमले की इत्तला मिली थी जब हमलावर अपना काम करके बहुत दूर निकल गए थे। मुसलमानों को काम पर जाने से रोक लिया गया। ईरानी फौजियों ने मर्दों को अलग इकट्ठा करके खड़ा कर दिया और उनके घरों से औरतों को बाहर निकालकर मर्दों से दूर खड़ा रहने का हुक्म दिया। फौजी उनके घरों में घुस गए और इस तरह तलाशी ली जैसे उनके मकानों की फर्श भी खोद कर देखी। उन्हें किसी घर से ऐसी कोई चीज न मिली जो शक पैदा करती। अलबत्ता सिपाहियों को अपने काम की जो चीजें नजर आई वो उन्होंने उठा ली। फिर उन्होंने औरतों और मर्दों को इकट्ठा खड़ा करके उन्हें धमकियां दी। मुसलमानों के साथ ये सलूक उनके लिए नया नहीं था। किसी न किसी बहाने उनके घरों की तलाशी होती रहती थी। उसके बाद उन्हें उसी तरह की धमकियां मिलती थी, लेकिन अब ईरानियों को माकूल बहाना मिला। एक ईरानी कमांडर ने मुसलमानों से कहा, रात उबला की एक मुजाफाती चौकी पर बहुत से आदमियों ने शबखून मारा है। हमारा एक कमांडर और 60 सिपाही मारे गए हैं और बहुत से जख्मी हुए हैं। अगर तुम में कोई मर्द या औरत उस गिरोह के किसी एक आदमी को भी पकड़वाएगा तो उसे इनाम मिलेगा। नकद इनाम के अलावा उसे इस फसल का आधा हिस्सा मिलेगा। उसने सब पर निगाह दौड़ाई और पूछा, एक दूसरे को देखकर बताओ कि तुम में कौन गैर हाजिर है। सबने इधर उधर देखा, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन गैर हाजिर है। उनकी निगाहें खुदाम को ढूंढ रही थी। वो 3-4 दिनों से बस्ती से गायब था। सबने देखा कि खुदाम वहाँ मौजूद था। सबने सुकून का सांस लिया। फिर बहुत सी आवाजें उठी कि कोई भी गैर हाजिर नहीं। ईरानी फौजियों के जाने के बाद जिन्हें मालूम था कि खुदाम 3-4 रोज गायब रहा है, वो बारी बारी उससे पूछने लगे कि वो कहाँ चला गया था। खुदाम ने हर किसी को यही जवाब दिया कि मैं शिमर के डर से भाग गया था। उसके बाप ने सबको बताया था कि खुदाम गुज़श्ता रात के पिछले पहर आया था। उस रोज बाग में काम करते हुए जहरा और खुदाम काम से खिसक गए और उस जगह जा बैठे जहाँ उन्हें कोई देख नहीं सकता था। जहरा खुशी से पागल हुई जा रही थी और वो रह रहकर खुदाम की बलाएं लेती
रहती थी। उसने खुशी से लड़खड़ाती हुई जबान से पूछा, खुदाम ये कैसे हुआ, ये हुआ कैसे? खुदाम ने कहा, इसे अल्लाह की मदद कहते हैं ज़हरा। अब न कहना कि खुदा मदद नहीं करता। ज़हरा संजीदा हो गई, जैसे उसके होंठों पर कभी मुस्कुराहट आई ही न हो। खुदाम के चेहरे पर नजरें गाड़ कर कदरे परेशान से लहजे में बोली, सच कहो खुदा, शिमर के कातिल तुम ही तो नहीं? कहते हैं रात सहराई डाकुओं के बहुत बड़े गिरोह ने शिमर की चौकी पर उस वक्त शबखून मारा जब वो शराब और रक्स में बदमस्त थी। ऐसा तो नहीं कि तुम उन डाकुओं से जा? खुदाम के अचानक कैकह ने बिन्त सऊद की बात पूरी न होने दी। वो हंसता ही रहा, जैसे इससे बड़ा मजाक उसने कभी सुना ही ना। खुदाम ने कैकह में एक राज छुपा लिया था। ज़हरा को ये खतरा नजर आया था कि खुदाम गैर मामूली तौर पर दलेर, गैरतमंद और जिस्मानी लिहाज से ताकतवर और फुर्तीला है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो शिमर को कत्ल करवाने के लिए डाकुओं के गिरोह से जा मिला हो। उस जमाने में सहराई डाकुओं के गिरोह फौजी दस्तों की तरह अपनी कार्रवाइयां करते थे। वो मुसाफिरों के काफिलों को लूटते और अगर फौज के मुकाबले में आ जाते तो जमकर मुकाबला करते और लड़ते लड़ते यूं गायब हो जाते जैसे उन्हें सहरा की रेत और रेतीले टीलों ने निगल लिया। ज़हरा ने कई बार देखा था कि 2-3 अजनबी मुसाफिर आए और ये बताकर कि वो बहुत दूर जा रहे हैं किसी मुसलमान के घर ठहरे और सुबह होते ही चले गए। वो जब भी आते थे खुदाम और उस जैसे 3-4 नौजवान ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारते और उनके जाने के बाद ये नौजवान पुरस्कार सी सरगर्मियों में मसरूफ हो जाते। ज़हरा ने ये भी देखा था कि अजनबी मुसाफिरों के जाने के बाद मुसलमान कबीलों के बुजुर्ग सर जोड़ कर बैठ जाते और सरगोशियों में बातें करते रहते। फिर जब मुसलमान खेती बाड़ी, बागबानी और दीगर कामों में मसरूफ होते तो ये बुजुर्ग उनके दरमियान घूमते फिरते और उनके साथ ऐसी बातें करते जैसे वास कर रहे हैं। बुजुर्ग इस किस्म की बातें करते थे, अपने मजहब को न छोड़ना, जिस खुदा के भेजे हुए रसूल को मानते हो उस खुदा की मदद आ रही है। आतिश परस्त ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, लेकिन वो अल्लाह से ज्यादा ताकतवर नहीं। साबित कदम रहो, जालिम का हाथ कटने वाला है, अल्लाह मजलूमीन के साथ है। एक रोज एक आदमी ने झुंझलाकर उन बुजुर्गों से पूछा, कब, आखिर कब? खुदा की कसम तुम ये कह रहे हो कि हम जुल्म सितम सहते चले जाएं और चुप रहें और तुम्हारे वाज सुनते रहें? अगर आज हम कह दें कि हम मुसलमान नहीं और इस्लाम के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी। खुदा की मदद आ रही है, कब आ रही है? एक बुजुर्ग ने उस आदमी के साथ काम करने वाले एक आदमी से कहा, इसे बताओ, इसे अच्छी तरह समझाओ, इसे बताओ कि इस इलाके में ये सदियों पुराने खंडर हैं। खुदा का हाथ इनमें से उठेगा और जालिम का हाथ कट जाएगा। उन बुजुर्गों के सीने में वही राज था जो खुदाम ने ज़हरा बिन्त सऊद से छुपा लिया था। ईरानी कमांडर शिमर की चौकी पर जो इतना जबरदस्त शबखून मारा गया था वो पहला शबखून नहीं था। उबला के इलाके में ये पहला था। ये चौकी चूंकि आबादी के करीब थी इसलिए उन मुसलमानों को पता चल गया था। अगर उनके घरों की तलाशी न लेनी होती तो शायद उन्हें पता ही न चलता। इराक के सरहदी इलाके में ये दूसरी तीसरी रात ईरानियों की किसी न किसी चौकी पर ऐसा ही शबखून पड़ता और शबखून मारने वाले चौकी में कत्ल गारत करके वहाँ से जो माल और सामान हाथ लगता लेकर गायब हो जाते। 2 बार ईरानी फौजी ने ये जवाबी कार्रवाई की कि कसीर तादाद घुड़सवार दस्ता शबखून मारने वालों की तलाश में गया। इस सरसब्ज और शादाब इलाके से निकलते ही सहरा शुरू हो जाता था, जो हमवार सहरा नहीं था। वहाँ रेत की गोल गोल और ऊंची ऊंची टेकरियां थीं। आगे वसी नशेब थे जिनमें अजीबोगरीब शक्लों के टीले खड़े थे। रेत की पहाड़ियां थी जिनसे शोले से निकलते महसूस होते थे। इस खौफनाक इलाके में जो मील हा मील फैला हुआ था सहरा के भेदी ही जा सकते थे। किसी अजनबी का वहाँ जाना ही मुहाल था और वहाँ जाकर जिंदा निकल आना तो नामुमकिन था। दोनों बार ईरानी फौज के घुड़सवार दस्ते का ये अंजाम हुआ कि उसे घोड़ों और इंसानों के नकुशबा मिलते रहे जो साफ बताते थे कि ये एक गिरोह है और शबखून मारने वाला यही गिरोह हो सकता है। मगर ये नकुश उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले गए। ईरानी जूं ही पहले नशेब में दाखिल हुए और पूरा दस्ता नशेब में उतर गया तो उन पर तीरों की बौछारें आने लगी। पहली बौछार में कई सवार और घोड़े घायल हो गए। जख्मी घोड़े बेलगाम होकर इधर उधर भागे। सारे दस्ते में भगदड़ मच गई। उन पर तीर बरसते रहे मगर बिखर जाने की वजह से तीर खता होने लगे। भूल भुलैयों में जैसे उस नशेब में से चंदे घुड़सवार निकले। उनके हाथों में बर्छियां थीं। उनके कुर्ते बड़े लंबे और सरों पर स्याह कपड़े इस तरह लिपटे होते थे कि उनके चेहरे और गर्दनें भी ढकी होती थी। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थी। उन घोड़ों के कदमों में और उनके सवारों के बाजुओं में ऐसी फुर्ती थी कि ईरानी सवार जो पहले ही हरासा थे बर्छियों से जख्मी होकर गिरने लगे। उनमें से कई भाग निकले। वो टीलों और घाटियों वाले नशेब से तो निकल गए लेकिन रेत की गोल गोल टेकरियों में दाखिल हुए तो घूमने लगे। उन सैकड़ों टेकरियों में जो एक दूसरी के साथ साथ
खड़ी 3-4 मील की वसअत में फैली हुई थी। यही खतरा होता है कि कोई अजनबी उनके अंदर चला जाए तो वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, निकल नहीं सकता, आखिर थक कर बैठ जाता है। प्यास से हलक में कांटे चुभने लगते हैं और रेगिस्तान की ये गोल गोल भूत उसे बड़ी अजियतनाक मौत मारती है। दूसरी बार ईरानियों के सवार दस्ते पर किसी और जगह से ऐसे ही हमला हुआ था और सवार बिखर कर इधर उधर भाग रहे थे तो उन्हें एक ललकार सुनाई देने लगी, जरतुश्त के पुजारियों, मैं मुसन्ना बिन हारिसा हूँ, जरतुश्त को साथ लाऊं। मुसन्ना बिन हारिसा, हरमस को ये नाम बता देना, मुसन्ना बिन हारिसा। उस ईरानी दस्ते के जो सवार जिंदा बच गए वो नीम मुर्दा थे। उन्होंने अपने कमांडारों को बताया कि उन्हें सहरा में ये ललकार सुनाई दी थी। उसके बाद ईरानियों की सरहदी चौकियों पर छापे पड़ते रहे, लेकिन उन्होंने छापामारों के ताक़ुब की और उनको तलाश करने की जरूरत न की। बाज छापों के बाद भी ये ललकार सुनाई देती थी, मुसन्ना बिन हारिसा, आतिश परस्तों मैं मुसन्ना बिन हारिसा हूँ। फिर मुसन्ना बिन हारिसा दहशत का, किसी जिन भूत का, किसी बदरूह का एक नाम बन गया। ईरानी फौजी उस नाम से डरने लगे। उन्होंने मुसन्ना बिन हारिसा या उसके गिरोह के किसी एक आदमी को पकड़ने के बहुत एहतमाम किए, लेकिन जब कहीं शब खून पड़ता था तो ईरानी फौजी जिनकी जुर्रत और बेजिगरी मशहूर थी दहशत से दुबक जाते। ये था वो मुसन्ना बिन हारिसा जो फरवरी 633 ईस्वी के एक रोज मदीना में खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक गुमनाम अजनबी की हैसियत से बैठा था। वो जनूबी इराक का रहने वाला और अपने कबीले बनु बकर का सरदार था। तारीख में ऐसा इशारा कहीं भी नहीं मिलता कि उसने कब और किस तरह इस्लाम कबूल किया। ये उसी की काविश का नतीजा था कि न सिर्फ उसके अपने कबीले ने बल्कि उन इलाकों में रहने वाले कई और कबीलों ने इस्लाम कबूल किया। जब जंग यमामा खत्म हुई और इर्तिदाद के फितने का सर कुचल दिया गया तो मुसन्ना बिन हारिसा ने इराक के जनूबी इलाकों में ईरानियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। उन्होंने उन मुसलमानों में से जो ईरानी बादशाही की रियाया थे एक गिरोह बना लिया और ईरानी फौज की सरहदी चौकियों पर शबखून मारने शुरू कर दिया। उनके शबखून इस कदर अचानक और तेज होते थे कि चौकी वालों को संभलने का मौका ही न मिलता था और मुसन्ना का गुरूह सफाया करके गायब हो जाता। उन्होंने बड़े ही दुश्वार गुजार सहरा में अपना अड्डा बना लिया था जिसे उन्होंने माल गनीमत से भर दिया था। फिर उन्होंने उन बस्तियों पर भी शबखून मारने शुरू कर दिए जहाँ सिर्फ ईरानी रहते थे। मुसन्ना ने सरहद पर ईरानी फौज को बेबस और मजबूर कर दिया। ईरानी फौज के कई सीनियर कमांडर मुसन्ना के हाथों मारे गए थे। मुसन्ना बिन हारिसा ने दूसरा काम ये किया कि इराक के जनूबी इलाके में जो मुसलमान जुल्म सितम में जिंदगी गुजार रहे थे उन्हें उसने अपने जमींदोज असर में लेकर मुत्तहिद रखा हुआ था। उनका एक गिरोह तो शबखून मारने का काम करता था और एक गिरोह बस्तियों में रहकर मुसलमानों को इत्तेहाद की लड़ी में पिरोए रखता था और उन्हें बताता रहता था कि बाहर क्या हो रहा है। मुसलमान अपने छापामारों की कामयाबियां देख रहे थे और वो मुतमईन थे। ये थी वो खुदाई मदद जिसके इंतजार में वो ईरानियों का जुल्म सितम सह रहे थे और अपना मजहब नहीं छोड़ रहे थे। वरना मजालिम से बचने का उनके सामने बड़ा सहल तरीका ये था कि इस्लाम से मुनहरिफ होकर आतिश परस्त हो जाते। खुदाम ने जहरा से कहा था कि वो 3-4 दिनों के लिए गायब हो जाएगा। वो गायब होकर छापामारों के अड्डे पर चला गया था और उन्हें ईरानी कमांडर शिमर के मुतालिक बताया था। उसकी चौकी तक छापामारों की रहनुमाई उसने की थी। चौकी पर हमला पूरी तरह कामयाब रहा। उसके फौरन बाद खुदाम अपने घर आ गया था। मुसन्ना बिन हारिसा ने अमीरुल मोमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को तफसील से बताया कि उन्होंने खलीज फारिस के साहिल के साथ साथ और इराक के जनूबी इलाके में किस तरह अरबी मुसलमानों के कबीलों को अपने असर में लिया और उन्हें इस्लाम पर कायम रखकर उन्हें जमींदोज महाज पर जमा किया। खलीफा ने कहा, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो इब्न हारिसा। तू अगर ये मशवरा देने आया है कि मैं ईरानियों पर फौज कशी करूं तो मुझे सोचना पड़ेगा। क्या तूने देखा नहीं कि ईरानियों की फौज की तादाद कितनी ज्यादा है और उनके वसाइल और जराए कितने वसी और लामहदूद हैं। हम अपने मुस्तकर से इतनी दूर कलील तादाद और बगैर वसाइल कसीर तादाद और ताकतवर फौज के मुकाबले के काबिल नहीं होते, लेकिन मैंने सल्तनत फारिस को नजरअंदाज भी नहीं किया। मुसन्ना ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर एक आदमी इतनी बड़ी मुल्क की फौज के साथ टक्कर ले सकता है और उन पर मुसलमानों के अस्करी जज्बे की धाक बिठा सकता है तो मैं अपने अल्लाह के भरोसे पे कहता हूँ कि एक मुनज़्ज़म फौज बहुत कुछ कर सकती है। मैं इस आतिश परस्त सल्तनत की अंदरूनी कैफियत देख आया हूँ। शाही खानदान तख्त ताज की खातिर आपस में दस्तों की रिबा हो रहा है। आप जानते हैं कि शहंशाह हरकल फारसियों को नैनवा और दस्त जर्द में बहुत बुरी शिकस्त दे चुका है। उसकी फौजें आतिश परस्त फारसियों के दारुल हुकूमत मदाइन के दरवाजों तक पहुँच गई थी। उसके बाद फारस
दासी संभल नहीं सके। अगर उनमें ऐश परस्ती को देखा जाए तो वो संभले हुए लगते हैं, लेकिन अब उनमें बादशाही के ताज पर रस्साकशी हो रही है। यमन उनके हाथ से निकल गया है और वहाँ के हाकिम बाज़ान ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनकी रियाया उनकी जंजीरें तोड़ना चाहती। उनकी महकूमी में उनके जुनूबी इलाकों के मुसलमान मेरे इशारे और मदीना की फौज के मुंतजर हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, तुझ पर रहमत ही रहमत हो मुसलमान। लारेब तेरी बातें मेरे दिल में उतर रही हैं। मेरा अगला कदम वही पड़ेगा जहाँ तू कहता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं सालारों की मजलिस से बात कर लूं?